Assalamu alaikum. Hope you all are fine. This lecture is about another very important and very famous essay by Francis Bacon, that is of revenge. In the previous lecture we have studied of studies, and in this lecture we are going to study of revenge. In this essay, Francis Bacon has gone totally against revenge, and he has given so many reasons against revenge. फ्रांसिस बेकन जो है इन्होंने इस ऐसे में रिवेंज की खुलकर मुखालफत की है, एंड ही हैज taken the side of forgiveness. Okay, in the beginning he says that revenge is uncivilized. Even in the beginning sentence of this essay is, revenge is a kind of wild justice which the more man's nature runs to, the more ought law to weed it out. According to Francis Bacon, there is no place for revenge in a civilized society. It is a deed, it is an action that is done in uncivilized societies. Francis Bacon कहते हैं कि revenge जो है एक uncivilized societies में होता है. Civilized societies में लोग revenge नहीं लेते. They take the advantage of law, क्योंकि जो लोग according to Francis Bacon, the people who think about revenge more and more, they take the law in their hands. They eradicate the function of law from the society. क्योंकि वो लोग law को या कानून को अहमियत ही नहीं देते हैं. They take revenge themselves. So that's why revenge is a kind of uncivilized action. लोगों को ये जस्टिस तो नजर आता है, अगर कोई रिवेंज लेता है तो he thinks that he has done justice, but it is a kind of wild justice which has no place in civilized society. Then he says that as for the first wrong, it doth but offend the law, but the revenge of that wrong putteth the law out of office. Again here for means because. फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जो the wrong that is done at the first place, or the person who has done a wrong at the first place has violated the law or violates the law. जो शख्स कोई जुर्म करता है, कोई बुरा करता है किसी के साथ, तो वो कानून के खिलाफ जाता है. He violates the law. But the revenge of that wrong put the law out of office. लेकिन जो शख्स revenge लेता है himself without taking advantage of the law, then he completely usurps the function of that law from the society. जो शख्स फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जो शख्स किसी ने बुरा किया आपके साथ, तो he violates the law. उन्होंने वो कानून के खिलाफ गए, उन्होंने आपके साथ जुर्म किया. Then there is a place for that wrong in the law. There is a punishment for that wrong in the law. आप कानून का सहारा लें. You can take the advantage of the law to take revenge. But Francis Bacon कहते हैं कि if you do not take the advantage of the law, you take revenge yourself. आप खुद से ही जो है वो revenge लेते हैं. Then you are like someone that he usurps the function of the law from the सोसाइटी, जो कानून के बिल्कुल खिलाफ चले जाते हैं. क्योंकि पहले शख्स ने आपके साथ जुर्म किया, आप कानून का सहारा लेके उनसे रिवेंज ले सकते हैं. बट इफ यू टेक रिवेंज योरसेल्फ, देन यू आर द वन हु वायलेट्स द लॉ मोर. Francis Bacon then says that forgiveness is moral superiority. How forgiveness is moral superiority? इन लाइंस में, इन सेंटेंस में फ्रांसिस बेकन जो है इन्होंने forgiveness की साइड ली है. He has focused on forgiveness more. He has taken the side of forgiveness instead of revenge. He says, certainly in taking revenge a man is but even with his enemy, but in passing it over he is superior, for it is a prince's part to pardon. And Solomon, I'm sure, said, it is the glory of a man to pass by an offense. फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि अगर कोई शख्स रिवेंज लेता है, if somebody takes revenge, he is equal with his enemy. कि अगर आप रिवेंज लेते हैं, किसी भी आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपने रिवेंज लिया, तो आप में और आपके दुश्मन में कोई फर्क नहीं है. You both are equal. लेकिन अगर आप उस
रॉन्ग डीड को इग्नोर करें, आप उसे भूल जाएं और मोर स्पेसिफिकली आप उसको जो है फॉरगिव करें, आप उसको माफ करें, देन यू आर सुपीरियर देन योर एनिमी। तब आप अपने एनिमी से ज्यादा सुपीरियर है। यू आर मोरली सुपीरियर देन योर एनिमी इफ यू फॉरगिव द रॉन्ग डन टू यू बाय योर एनिमी। लेकिन अगर आप उसका इंतकाम लेते हैं, यू टेक रिवेंज, then there is no difference between you and your enemy. Then he says that for it is a prince's part to pardon, क्योंकि forgiveness जो है that shows nobility, like kings and princes they normally forgive people, like people seek forgiveness from like high people. That's why it shows nobility, it shows moral superiority. And Solomon, I'm sure Seth means said. Okay, Solomon, I'm sure said, it is the glory of a man to pass by an offense. Francis Bacon अब हवाला देते हैं Solomon का, a character in the Bible famous for his wisdom. He said that it is the greatness of a man to pass by an offense, to forgive an offense, to forgive a wrong done to him. So it is the greatness of a man if he forgives somebody. Then he says that which is past is gone and irrevocable, and wise men have enough to do with things present and to come. Therefore they do but trifle with themselves that labor in past matters. Francis Bacon कहते हैं कि past is gone and can never be recalled. जो गुजर गया that cannot be recalled now. आप उसको जो है दोबारा से recall नहीं कर सकते. और जो wise लोग होते हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, they have enough to do with the things present and future. उनको अपने present and अपने future के बारे में जो है ज्यादा फिक्र होती है. And the people who think more about their present and their future are wise people. और जो लोग past के बारे में ज्यादा सोचते हैं, they think all the time about their past. They do nothing but they waste their time and energy. वो सिर्फ अपना वक्त और अपनी एनर्जी जाया करते हैं जो लोग पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं. तो फ्रांसिस बेकन सेज दैट ही मीन्स टू से दैट यू शुड फॉरगिव योर एनिमी, और आपको जो है वो रिवेंज के बारे में नहीं सोचना चाहिए. यू शुड बी लाइक थिंकिंग अबाउट योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर. और अगर आप सिर्फ अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे, आपके साथ जो बुरा हुआ आप उसको हर टाइम जो है उसके बारे में सोचेंगे, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी. यू शुड फॉरगिव इट and go ahead with your life. Francis Bacon then gives some other reasons against taking revenge. इन्होंने इन sentences में again जो है फ्रांसिस बेकन ने कुछ दलाइल दिए हैं रिवेंज के बारे में, या रिवेंज के खिलाफ, या रिवेंज ना लेने के बारे में. He says that there is no man doeth the wrong for the wrong's sake, but thereby to purchase himself profit or pleasure or honor or the like. फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि लोग अगर जो है रॉन्ग डीड क्यों करते हैं, किसी के साथ बुरा क्यों करते हैं, टू परचेज हिमसेल्फ प्रॉफिट, या तो अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए करते हैं, किसी फायदे के लिए करते हैं, और प्लेजर या जो है प्लेजर के लिए करते हैं, या अपनी इज्जत के लिए करते हैं, और लाइक और इसी तरह का कोई और रीजन हो सकता है. तो he says that therefore why should I be angry with a man for loving himself better than me. कि अगर कोई शख्स इस तरह का बुरा काम करता है फॉर दिस टाइप ऑफ रीजन, कि वो अपनी किसी जाती मफाद के लिए किसी के साथ बुरा करता है, तो व्हाई शुड यू पीपल बी एंग्री विद सच काइंड ऑफ मैन. तो ऐसे शख्स से जो है वो के खिलाफ जो है वो नाराजगी मतलब आप रखेंगे तो इट्स ऑफ नो यूज, इसका कोई फायदा ही नहीं है. एंड इफ एनी मैन, उसके बाद उन्होंने ये एग्जाम्पल दी है कि इफ एनी मैन शुड डू रॉन्ग merely out of ill nature, why yet it is but like the thorn on briar which prick and scratch because they can do no other. उन्होंने इसको फर्दर जो है वो इसकी एग्जांपल दी है कि अगर कोई शख्स इस तरह मतलब उसकी नेचर ही इल है, उसकी नेचर ही खराब है, उसकी आदत ही ऐसी है कि वो लोगों के साथ बुरा करता है, तो उन्होंने एग्जांपल दी है फिर कांटे की, थॉर्न कांटे की के मतलब के फूल के साथ या स्पेसिफिकली गुलाब के फूल के साथ कांटा लगा होता है, तो कांटे का तो काम ही है चुभना. लाइक इट इज like the thorn or briar which prick and scratch because they can do no other. के कांटे का तो काम ही चुभना है, कांटा तो कोई और काम कर ही नहीं सकता.
तो अगर कोई शख्स जिसकी नेचर इल है, जिसकी आदत ऐसी है, जो अपने ज़ाती मफाद के लिए लोगों के साथ बुरा करता है, तो ऐसे शख्स को इग्नोर करना चाहिए। कांटे को भी आप इग्नोर ही कर सकते हैं। कांटा आपको चुभता है तो आप उसको इग्नोर करें, आप कांटे के खिलाफ कर ही क्या सकते हैं। तो इसी तरह कोई भी शख्स अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो अकॉर्डिंग टू बैकन यू शुड इग्नोर हिम एंड गो अहेड विद योर लाइफ, बिकॉज कि ऐसे शख्स की नेचर ही इल होती है जो किसी के साथ बुरा करता है। फ्रांसिस बेकन फिर ये बताते हैं कि रिवेंज किस वक्त टॉलरेबल होता है, कि कैसे कौन सा ऐसा रॉन्ग काम है, कौन सा ऐसा बुरा अमल है जिसके खिलाफ आप रिवेंज ले सकते हैं। So he says that the most tolerable sort of revenge is for those wrongs which there is no law to remedy, but then let a man take heed, for the revenge be such as there is no law to punish, else a man's enemy is still beforehand and it is 2 for 1. फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि रिवेंज सिर्फ और सिर्फ उस वक्त टॉलरेबल होता है जब आपके साथ कोई ऐसा बुरा अमल होता है जिसके खिलाफ जो है वो कानून में कोई सजा ही नहीं है। Means a kind of wrong done to you for which there is no punishment in the law। कि अगर आपके साथ कोई ऐसा बुरा काम किसी ने किया, आपके साथ कोई ऐसा जो है वो मतलब रॉन्ग डीड हुआ जिसके खिलाफ आप कानूनी सहारा नहीं ले सकते, कानून में उसके खिलाफ कोई सजा ही नहीं है, तब आप रिवेंज ले सकते हैं। Then at that time revenge is tolerable। लेकिन उसमें भी फ्रांसिस बेकन ये कहते हैं कि बट देन लेट अ मैन टेक हीड द रिवेंज बी सच एज देयर इज नो लॉ टू पनिश एल्स अ मैन्स एनिमी इज स्टिल बिफोर हैंड एंड इट इज 2 for 1। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि आपको रिवेंज भी ऐसा ही लेना चाहिए ऐसा अमल से आप रिवेंज लें जिसके खिलाफ कानून में सजा ना हो। लेकिन क्योंकि अगर आप इस तरह का रिवेंज लेते हैं कि आपका जो एनिमी है वो कानूनी सहारा ले, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, तो आपके एनिमी को इसमें फायदा पहुंच जाएगा। एल्स अ मैन्स एनिमी इज स्टिल बिफोर हिम, क्योंकि कहते हैं कि आपका दुश्मन जो है वो फिर भी फायदे में होगा, ही विल बी इन एडवांटेज। क्यों? एंड इट इज 2 for 1। कि जो ओरिजिनल रॉन्ग डूबर है जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया, उसको सिर्फ एक दफा तकलीफ पहुंचेगी जब आप उससे रिवेंज लेंगे, सिर्फ एक दफा। he will suffer only once when you take revenge, but you the avenger will suffer twice। लेकिन आप 2 दफा जो है वो सफर करेंगे। क्यों 2 दफा? फर्स्ट when a wrong deed was done to you, जब आपके साथ आपके एनिमी ने बुरा किया। सेकंड, जब आपका एनिमी आपके बदले के खिलाफ जो है वो कानूनी सहारा ले और कानून आपको पनिश करे, तो आप 2 दफा सफर करेंगे। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि आपको उस वक्त रिवेंज लेने में खास ख्याल रखना चाहिए कि आप रिवेंज ऐसा लें जिसमें जो है वो कानूनी सजा ना हो, जिसके खिलाफ ऐसा एक्शन आप करें जिसके खिलाफ कोई कानूनी सजा ना हो। Then Francis Bacon says, some when they take revenge are desirous the party should know whence it comes। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं या मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब रिवेंज लेते हैं तो वो अपने एनिमी को ये बावर कराते हैं कि उनके साथ ये बुरा क्यों हुआ, क्योंकि दिस इज द मोर जेनरस। फ्रांसिस बेकन कहते हैं दिस इज द मोर जेनरस फॉर द डिलाइट सीम to be not so much in doing the hurt as in making the party repent। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि आप जब रिवेंज लेते हैं तो like it is more generous to make your enemy know the source of this revenge and make them repent and to make them feel sorry for their wrong done to you। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जब आप रिवेंज लें तो आप इस तरह रिवेंज लें कि आपके एनिमी को पता चले कि उनके साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, उनको पता चले कि जो है आप रिवेंज ले रहे हैं, उनको सोर्स का पता चलना चाहिए कि उनके साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। फ्रांसिस बेकन देन सेज दैट, और फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि इसमें ज्यादा प्लेजर मिलता है कि आप अपने एनिमी को जो है ये पता चलने देते हैं कि आप रिवेंज ले रहे हैं। और फ्रांसिस बेकन then says that but vast and crafty cowards are like the arrow that flight in the dark। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जो
क्राफ्टी कॉवर्ड्स होते हैं, जो कनिंग कॉवर्ड्स होते हैं, जो बुज़दिल लोग होते हैं, दे आर लाइक द एरो दैट इज शॉट इन द डार्क, कि वो जब रिवेंज लेते हैं तो वो अपने एनिमी को पता चलने नहीं देते। That is like the arrow that is shot in the dark, के एनिमी को एरो कहाँ से आके लगा, एनिमी को कुछ पता ही नहीं चलता कि उनके साथ ये बुरा क्यों हुआ। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जब भी अगर आप रिवेंज लें तो आप इस तरह रिवेंज लें कि आपके एनिमी को उसके सोर्स का पता चल जाए। Then Francis Bacon talks about revenge against a friend. He says Cosmas, Duke of Florence, had a desperate saying against perfidious or neglecting friends, as if those wrongs were unpardonable. You shall read, said he, means he said, Cosmas said, you shall read that we are commanded to forgive our enemies, but you never read that we are commanded to forgive our friends. फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जो कॉस्मस थे, ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के जो नवाब थे या हाईली अथॉरिटेटिव पर्सन ऑफ फ्लोरेंस, कॉस्मस, उन्होंने जो है वो फ्रेंड्स के खिलाफ, फ्रेंड्स अगर आपके साथ कुछ बुरा करते हैं तो उसके खिलाफ रिवेंज लेने का कहा है कि यू शैल रीड दैट वी आर कमांडेड टू फॉरगिव आवर एनिमीज। कॉस्मस कहते हैं कि हमें ये तो बताया जाता है, ये हुक्म तो हमें हुआ है कि हम अपने एनिमीज को माफ करें, बट यू नेवर रीड दैट वी आर कमांडेड टू फॉरगिव आवर फ्रेंड्स। लेकिन आप ये कभी नहीं पढ़ेंगे, आपको ये कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, हमें ना ये हुक्म हुआ है कि हम अपने दोस्तों को भी माफ करें, हमें सिर्फ ये हुक्म हुआ है कि हम अपने एनिमीज को माफ करें, फ्रेंड्स को माफ करने का हमें हुक्म नहीं हुआ है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन, कॉस्मस कहते हैं कि जो रॉन्ग्स फ्रेंड्स करते हैं, इज इफ दोज रॉन्ग्स वर अनपार्डनेबल, कि अगर आपके साथ कोई आपका फ्रेंड कोई बुरा करता है तो दैट इज मोर अनपार्डनेबल, वो ज्यादा नाकाबिले माफी जुर्म होता है अकॉर्डिंग टू अ रॉन्ग डन टू यू बाय एन एनिमी, के एनिमी को तो आप माफ कर सकते हैं बट यू कैन नेवर एवर फॉरगिव योर फ्रेंड, दैट इज द रॉन्ग डन टू यू बाय अ फ्रेंड इज मोर अनपार्डनेबल, वो ज्यादा नाकाबिले माफी जुर्म होता है। Then Francis Bacon says that, but yet the spirit of Job was in a better tune. Job is once again another character in the Bible. Francis Bacon says, shall we, said he, means said Job. Job said, shall we take good at God's hands and not be content to take evil also? This statement is contradictory to that of Cosmas. And so friends in a proportion. अब जॉब कहते हैं, जो देयर इज अ कैरेक्टर इन बाइबल, ही सेज दैट जिस तरह हम गॉड्स, जिस तरह हम जो है वो खुदा की तरफ से हम हमारे साथ अच्छा भी होता है, अच्छा वक्त भी हम पर आता है, बुरा वक्त भी आता है, आजमाइश का वक्त भी आता है, एंड दैट ऑल दिस थिंग्स आर फ्रॉम गॉड, ये गॉड की तरफ से ही होते हैं। तो इसी तरह हमें फ्रेंड्स से भी जो है वो अच्छे की उम्मीद भी रखनी चाहिए, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है फ्रेंड्स की जानिब से तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए और हमें उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हम पे बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है, दोनों खुदा की तरफ से होते हैं, दोनों बोथ ऑल दिस थिंग्स आर फ्रॉम गॉड। तो इसी तरह हमें फ्रेंड्स से भी जो है वो गुड और बैड जो है वो कुछ भी हमारे साथ हो सकता है फ्रॉम फ्रेंड्स, और अगर हमारे साथ फ्रेंड कुछ बुरा करे तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। Then Francis Bacon talks about brooding or thinking over the wrong done to you in past. He says that this is certain, that a man that studied here means studies revenge, keeps his own wounds green, which otherwise would heal and do well. Francis Bacon कहते हैं कि जो लोग हर वक्त हर टाइम रिवेंज के बारे में सोचते रहते हैं कि वो रिवेंज कैसे लेंगे, किस तरह लेंगे, कब रिवेंज लेंगे, और हर वक्त उस रॉन्ग डीड के बारे में सोचते हैं जो उनके साथ पास्ट में हुआ, तो अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन वो अपने जख्म को, अपने पेन को, अपने दर्द को हर वक्त ग्रीन रखते हैं, हर वक्त फ्रेश रखते हैं, हर वक्त ताज़ा रखते हैं, उनका जख्म हर वक्त ताज़ा होता है, उनका दुख हर वक्त ताज़ा होता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन कि अगर आपके साथ इस तरह कुछ बुरा होता है पास में, यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट ऑल द टाइम, विच अदरवाइज वुड हील एंड डू वेल। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि अगर आप उसके बारे में ना सोचें, रिवेंज के बारे में ना सोचें, तो आपका जख्म जो है वो
कुछ वक्त के बाद जो है वो दुख खत्म हो जाता है, आप उसको भूल जाते हैं बिल्कुल। तो अगर सिर्फ सोचते रहेंगे उस रॉन्ग डीड के बारे में, तो आपका जख्म, आपका दुख, आपका दर्द जो है वो हर वक्त फ्रेश होगा। Francis Bacon then talks about public and private revenges. Francis Bacon कहते हैं कि public revenges are for the most part fortunate, as that for the death of Caesar, for the death of Pertinax, for the death of Henry III of France, and many more. Francis Bacon यहाँ पे public और private revenges का जो है वो comparison करते हैं। Public revenge का मतलब है कि ऐसा revenge जो आप public की इम्पोर्टेंस के लिए रिवेंज लेते हैं, कि आप आवाम के फायदे के लिए अगर रिवेंज लिया जाता है तो अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन दैट इज सक्सेसफुल। सच काइंड ऑफ पीपल आर सक्सेसफुल हु टेक पब्लिक रिवेंज। ऐसे लोग जो रिवेंज सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उसमें आवाम का फायदा हो, तो ऐसा रिवेंज भी सक्सेसफुल होता है और ऐसे लोग भी सक्सेसफुल होते हैं। कि जिस तरह वो हवाला देते हैं कि जिस तरह ये किंग्स जो थे, जूलियस सीजर थे, पर्टिनेक्स थे, रोमन एम्परर एंड हेनरी III ऑफ फ्रांस, हेनरी जो थे किंग फ्रांस के, कि इनके डेथ्स इनको जो इनकी जो डेथ्स हुई थी, इनके मर्डर हुए थे, इन किंग्स के मर्डर हुए थे, और इन मर्डर के रिवेंज जिन्होंने लिए थे, जो एवेंजर्स थे, वो सक्सेसफुल पीपल रहे। जिन्होंने रिवेंज लिया इन लोगों के मर्डर का, वो लोग हिस्ट्री में सक्सेसफुल रहे। तो अकॉर्डिंग टू बैकन पब्लिक रिवेंजेस जो है वो सक्सेसफुल होती है और पब्लिक एवेंजर्स जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे लोग जो पब्लिक के फायदे के लिए रिवेंज लेते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। बट इन प्राइवेट रिवेंजेस इट इज नॉट सो। Rather, vindictive persons live the life of witches, who, as they are mischievous, so end their infortunate. फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जो प्राइवेट एवेंजर्स होते हैं, अगर कोई शख्स अपने जाती फायदे के लिए रिवेंज लेता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। जिस तरह पब्लिक एवेंजर्स सक्सेसफुल होते हैं, इस तरह प्राइवेट एवेंजर्स सक्सेसफुल नहीं होते। कि जो शख्स सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए जो है रिवेंज लेता है, दे आर नॉट सक्सेसफुल। फिर वो कंपेयर करते हैं ऐसे लोगों को विचेस के साथ, विच चुड़ैलों के साथ, भूत और चुड़ैलों वगैरह के साथ कंपेयर करते हैं फ्रांसिस बेकन ऐसे लोगों को जो प्राइवेट रिवेंज लेते हैं, जो अपने जाती फायदे के लिए, इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए रिवेंज लेते हैं। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जिस तरह विचेस की जो लाइफ होती है, उनकी लाइफ जो है वो मिस्चीवस होती है, उनकी जो है वो हैबिट मिस्चीवस होती है, और उनका एंड जो है वो अनफॉर्चुनेट होता है, उनका एंड ट्रैजिक होता है। इसी तरह ऐसे लोग जो विंडिक्टिव पर्सन्स मींस जो एवेंजर्स होते हैं, जो हर वक्त रिवेंज के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों का एंड जो है वो भी अनफॉर्चुनेट होता है। तो यहाँ पे इस ऐसे का एंड होता है। और इन दिस ऐसे फ्रांसिस बेकन हैज गॉन टोटली अगेंस्ट रिवेंज, और उन्होंने जो रीजंस दिए हैं, यू हैव लाइक आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन डिटेल, कि उन्होंने जो रीजंस दिए हैं रिवेंज के खिलाफ, के रिवेंज हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, और अगर हमें रिवेंज लेना है तो हम किस सूरत में ले सकते हैं रिवेंज, और कैसे ले सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस essay of revenge by Francis Bacon. If you have any confusion, any problem, you can ask. Thank you.